A warm and lovely morning, dear students. So, I had sent you a video on Friday, yes, regarding the third unit of English prose, that was sports. Okay, so in that we have discussed till activity 5. Now, today we'll be continuing with activity 6. So, let's start activity 6. Yeah, let's begin with activity 6. Activity 6 basically describes about one of the sports, that is archery. Okay, many people are prominent for their archery. Yes, Drona, Arjuna, then Eklavya. These are the prominent characters from Mahabharata. Then from Ramayana also there are many characters. That is हमारा पूरा जो epic है, हमारा जो historical epic stories हो या कुछ भी ऐसे heroic deed के stories हो, mythological stories हो, उन सब में archery एक बहुत ही prominent स्पोर्ट्स है जो बहुत ही फेमिलियर है एंड बहुत सारे लोग उसको प्रिफर भी करते हैं. सो हियर इज अ स्टोरी ऑफ एकलव्य फ्रॉम महाभारत. ओके, एकलव्य यूज्ड टू बी इन एग्जिस्टेंस 5000 years ago and he lived in the forest of हस्तिनापुरा. ओके, हस्तिनापुर के जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे वो रहते थे. So he was a brave and a handsome boy. And above that everyone loved him, okay, because of his true nature. But still he was not happy with his life. Okay, so what happened is one day his father observed that all the other kids of his age are going for hunting, playing, means they are enjoying at their small age, that is the teenagers also, but he was always equipped in his thoughts and always upset. Therefore his father decided to ask him that what was pinching him so much. Now this much is given to you as the beginning of the story in your text. ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा on page number 23 they are directly moving to the एंड ऑफ द स्टोरी. तो बीच का पोर्शन का क्या करें, दैट यू हैव टू फ्रेम. ओके, द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्टोरी वो आपको खुद लिखना होगा लेकिन डायलॉग फॉर्म में. आई विल नरेट यू, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ इन बिटवीन, तो आप वो सुनकर अपने वर्ड्स में डायलॉग फॉर्म में वो लिखोगे अपनी नोटबुक के अंदर. क्लियर, अंडरस्टूड? सो यस, so listen it carefully. Then his father decides to ask him as to why he is so much equipped in his thoughts and what is pinching him. So he says that nobody is there to play with me, and all they are, I like to play with the bow and arrow, but nobody gives me and they are avoiding me like that and all. So his father says, okay, then I will play with you. So he says, no, I want to play with my age people and I don't want to play with you. Then he says, then I can take you to Guru Drona, that is Dronacharya, and he will guide you and will make you learn. So he says, oh, for that I don't need your help, okay, I can do it myself. Then after some days he visits Guru Dronacharya, and when he has a talk with him, so Guru Drona asks him as to which caste he belonged to. So he says that I will that time his father comes and says we belong to the Shudra. So Shudra is we have learnt about the 4 caste systems that people used to prefer in the olden times. लास्ट ईयर वी हैड डन. यस, तो वही उसमें से शूद्र करके एक कास्ट है जिसमें ये लोग बिलोंग करते थे. सो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मैं ये कास्ट में से किसी को पढ़ा नहीं सकता. उस टाइम पे कास्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मानते थे, एंड राजाओं के बच्चों के अगर तुम गुरु हो तो तुमको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था, एंड दे वर नॉट अलाउड टू टीच टू अदर स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव वेदर दे वांट टू ऑल्सो. मतलब अगर वो सिखाना भी चाहते वो नहीं सिखा सकते, बिकॉज उन लोग ने एक प्रॉमिस दिया होता है कि हम राजा के बच्चों को ही सिखाएंगे टू द किंग. देयरफॉर दे हैव टू कीप अप देयर वर्ड्स. ओके, सो ये बात सुनकर एकलव्य और उनके डैड दोनों बहुत ही अपसेट हो जाते. तो वो बोलते हैं कि तो उस टाइम पे मतलब वो बोलते हैं कि मैं तुमको सिखाता हूँ, लेट्स डू. तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं खुद ही सीख लूँगा. एंड वो क्या करता है, एक थोड़ा मिट्टी लेता है, उससे द्रोणाचार्य का आइडल बनाता है. ठीक है, एंड वो रखकर उसके सामने रोज प्रैक्टिस करता है. ही प्रैक्टिस हिमसेल्फ, वो खुद ही मतलब बोलेगा, आरो करेगा, ऐसा प्रैक्टिस कर करके वो बहुत ही मतलब ब्रेव एंड करेजियस एंड अ प्रोमिनेंट एंड अ फेमस, मतलब इतना प्रॉपर आर्चर बन जाता है कि एक दिन वो अपने डैड को बोलता है कि आप मुझे बताओ कि कहाँ मैं तीर मारूं. एंड ही सेज कि गो मीन्स ओवर देयर. तो
ऑल डायरेक्शन जहाँ पे वो बोलते हैं छोटे से माइन्यूट चीज़ भी क्यों ना हो वो करेक्ट निशाना चुकाता है। तो ये देख के द्रोणा भी शॉक हो जाते बिकॉज ही डजंट रिमेंबर हु दिस किड इज, ओके, हु दिस बॉय इज नाउ। तो वो आके एक दिन पूछते हैं कि आप कौन हो, तो उसने बोला कि गुरुजी प्रणाम, आई यू डोंट रिमेंबर मी, ओके। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ये आइडल किसका बना, तो ये आपका, मैं आपका डिसाइपल हूँ। तो बोला मैं तो बहुत खुश हो गया कि तुम इतना अच्छा कर रहे हो, खुद ही मेरे को इतना तुम मानते हो। तो बोला सब आपके आशीर्वाद से हो, ऐसा करके वो बोलते हैं। फिर वो अर्जुन के पास जाते हैं, यू नो ना द पांडवास में से एक जो अर्जुन, हाँ, एंड ही वॉज अ फेमस आर्चर, यस, हाँ। तो अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन को द्रोणाचार्य बोलते हैं कि एकलव्य करके एक है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मस्त वो बो और एरो से करता है, बहुत अच्छी आर्चरी है उसकी, तो मेक श्योर कि वो तुम्हें कभी हराए ना, ऐसा करके। क्योंकि एज अ गुरु ही हैज़ टू सपोर्ट अर्जुन ना, तो वो अर्जुन को दिए प्रॉमिस उनको याद आता है। एक्चुअली ही रियली वॉन्ट्स टू ट्रेन एकलव्य, बट उसको ऐसा है कि ही हैज़ टू कीप हिज वर्ड्स। तो वो क्या करते हैं, फिर एक दिन वापस अर्जुन मतलब एकलव्य के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एकलव्य अर्जुन से भी अच्छा आर्चर है। तो वो एकलव्य के पास जाते हैं द्रोणाचार्य और उनको कहते हैं कि तुम मुझे गुरु मानते हो राइट। तो फिर बोला हाँ, तो फिर तुम मुझे एक काम करो, अपना थंब दे दो, ऐसा करके। तो फिर वो बिना झिझके वो अपना थंब कट करके दे देता है, ऐसा गुरु दक्षिणा। सो एक्चुअली गुरु द्रोणाचार्य को बुरा लगता है कि उन्होंने ऐसा मांगा, बट वो अर्जुन को दिए वर्ड्स के वजह से उनको ये करना पड़ता है। सो ही हैप्पीली गिव्स दैट एंड देन वी हैव द एंड ऑफ द स्टोरी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 23। नाउ हियर दे आर सेइंग, देन ही सेज कि ये रहा गुरु दक्षिणा, एंड ही से कि मैं आपका डिसाइपल बन के मैं खुश हो गया, भले मैं शूद्र कास्ट में भी क्यों ना हूँ, ऐसा। फिर उसके बाद वो सेज भी बहुत ही हम्बल था, मतलब द्रोणाचार्य। फिर वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही करेजियस हो एकलव्य, तुम्हारे जैसा डिसाइपल आज तक कोई नहीं, तुम्हें पूरी दुनिया जानेगी तुम्हारे इस करेजियस एक्ट के लिए और ये गुरु दक्षिणा के लिए, ठीक है। सो ऑलवेज बी ब्लेस्ड एंड इस तरीके से फिर बोलकर, मतलब तुम कितने लॉयल हो अपने गुरु की तरफ, ऐसे बोल के वो उस फॉरेस्ट छोड़ के चले जाते, ठीक है। तो एक्चुअली गुरु को बुरा लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट उनको ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने जो प्रॉमिस रखा वो भी कीप अप कर पाए, है ना। हाँ, फिर वो और भगवान भी ब्लेस करते हैं एकलव्य को, बट भले वो उनका ऐसा हुआ, देखो उसने खुद ही सीखा है, ठीक है, तो ही knows how to cope up. So now what happened is, even though his thumb was not there, he practiced with his middle finger, with his little finger and other fingers and became prominent. फिर भी वो एक्चुअली करते गया एंड उसके बाकी फिंगर्स के थ्रू उसने एक एक एक्शंस करके वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब फेमिलराइज हो गया, ऐसा, ठीक है। और द्रोणा को जब ये पता चला तो उन्होंने उसको ब्लेस भी किया और साइलेंटली फॉरगिवनेस भी सीख किया कि उसने ऐसा किया भगवान से। नाउ जिस तरीके से द्रोणा का ब्लेसिंग है, एकलव्य को आज भी प्रेज किया जाता है उनके लॉयल्टी के लिए और एज अ ब्रेव स्टूडेंट फ्रॉम द एपिक ऑफ महाभारत। सो व्हाट आई वांट टू सजेस्ट इज, सी कितने लॉयल थे वो अपने टीचर्स की तरफ। इट्स नॉट रिगार्डिंग दिस टीचर्स, यू ऑलवेज शुड बी लॉयल इन योर लाइफ, ठीक है, हमेशा ऑनेस्ट रहने का। इफ़ यू हैव डन सम मिस्टेक, एक्सेप्ट इट and make sure that you always be true to your karma. Whatever you do, do it willingly and do it to your heart, okay। कुछ भी ऐसे ऐसी चीज़ों में नहीं जाने का। whenever you take a decision, think twice thrice, okay, and always respect each other। भले वो आपके एज के हो, आपसे एल्डर हो, आपसे लोअर हो, you always should respect them। if you respect them, you will get respect, yeah। so like a good disciple, you also have to be make sure कि आप भी इस तरीके से एक अच्छे disciple, एक अच्छे student की तरह रहो। not only student, being a son, being a daughter, being your grandchildren, okay, whatever it is, आपको अच्छे से मतलब रहना चाहिए, ठीक है। so I have told you the middle of the story। इस तरीके से आप स्टोरी को अपने डायलॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना, ठीक है। अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ एकलव्य एंड द्रोणाचार्य फ्रॉम महाभारत, okay। now let's move to activity 7। It's about a prominent cricketer, that is Sachin Tendulkar, okay। so सबको ये नाम पता है, आपको शायद इसमें दिया हुआ हिस्ट्री से भी ज़्यादा पता होगा, okay। so let's directly go to the topic, that would be better, yes, yeah। so Sachin Tendulkar is probably the most famous popular sportsman in India। yes, very popular still, till date people still remember him for his
sport, yes, for his achievements, for his dedication to the dream he wanted to achieve, etc. so बहुत ही prominent public figure थे, but बहुत ही dignified थे वो. dignified मतलब बहुत ही मतलब sticking to his point, to his words, okay, discipline, responsible, then mature outlook, remaining aware of his responsibilities, whatever he has to achieve, whatever he has to perform, okay, and also protecting his privacy. He was not like everything to show off. He had his own zones, and he used to be in that only, okay. When he married Anjali, that is his wife, okay, a doctor and a friend from his childhood, he rejected large sums from satellite TV फॉर लाइव कवरेज, कीपिंग इट अ फैमिली अफेयर. उनको मतलब ऑफर किया था कि आप आपका मतलब ये जो मैरिज का है वो हमें टेलीकास्ट करने दोगे तो आपको हम इतना अमाउंट देंगे एंड ऑल. सो ही सेड नो, आई वांट टू कीप इट माय प्राइवेसी. सो उनको ऐसा नहीं बहुत बोस्टिंग करना या बहुत ही ऐसा मैं ये हूँ वो हूँ दिखाना अच्छा नहीं लगता है. वॉज a simple gentleman, okay. Yeah, then he knows his worth, and over the next few years his endorsements are worth 75 million US dollars, ठीक है. 75 million US dollars जितना उनका ये था एसेट था. स्टिल वो कभी भी ग्रैबर नहीं था. पैसे की नाम पे वो तुरंत हाँ मैं आ जाऊँगा, हाँ मैं करूँगा, ऐसे उनको एटीट्यूड नहीं था. इवन दो मनी आएगा जाएगा, ही यूज टू बी लाइक मेरा एक एक एथिक्स है, मेरा वर्क एथिक्स है, मेरा रूल्स है, मैं उसके बियॉन्ड कुछ भी करने नहीं वाला, ओके. सो इवन हिज फादर वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सो ही ऑल्सो हैड ट्रेन्ड इन हाउ द वर्क, वॉट आर वर्क एथिक्स एंड ऑल, ओके. या देन ही वॉज born in Mumbai, okay, on 24th April 1973. From that itself he was very steady, and he had also taken up his education at the Sharda Darshan ashram, okay, Shardashram Vidya Mandir, where he got opportunity for improving his skills in cricket, especially batting, जहाँ पे वो कितने भी देर बैटिंग वगैरह प्रैक्टिस कर सकते थे. एंड या और उन्होंने मतलब अंडर 17 जब हैरिस मेमोरियल चैलेंज शील्ड था वो अचीव करने का कंपटीशन था, दैट इज स्पोर्ट्स. सो देयर आल्सो ही टुक पार्ट, ओके. ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी फॉर द स्कूल एट द एज ऑफ 12. 12 साल में उन्होंने पहला अपना सेंचुरी ग्रैब किया. उसके बाद तो कभी उनको पीछे हटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. 16 ईयर्स के और 205 डेज ओल्ड थे वो तब उन्होंने पहला टेस्ट डेब्यूट किया नवंबर में 1989 में द नेशनल स्टेडियम इन कराची, ओके. द वेरी नेक्स्ट ईयर उन्होंने फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी हिट की थी एट ओल्ड ट्रैटफोर्ड दैट इज इन मैनचेस्टर, ओके, England. Then this century was an example of an exercise in techniques, concentration and application. मतलब इतने छोटे उम्र में भी वो इतने प्रॉपरली इतने कीनली अगर अचीव कर रहे हैं, दैट मीन्स ही वॉज a well versatile cricketer, okay. Yeah, so had it come 31 days earlier, मतलब ये टेस्ट सीरीज के 31 डेज पहले होता तो यंगेस्ट सेंचुरी मेकर के टर्म्स में वो जाने जाते हैं टेस्ट हिस्ट्री में, ओके. 91-92 में in 1991-92 he went to Australia where they still talking of for his century scored in Perth and Sydney. पर्थ और सिडनी में जिन्होंने सेंचुरीज ग्रैब किए थे उसके आज भी चर्चा होते हैं, okay. So that is all about him in activity 7. You can grab more information about him, and I want you to search some more information, at least 5 fact about him, and you have to write in your notebook. Any 5 apart from this given in the textbook. textbook में जितना पता है उसके अलावा कुछ भी 5 चीज़ें उनके बारे में डेट वाइज या ईयर वाइज आप मेंशन करके टेबल बनाना है नोटबुक के अंदर, ओके. या Activity 8. You have to match A with B. Now in A there are some adjectives given, and in B you will be matching which goes with what, okay. I'll send the pic of that, you can solve accordingly. Now what you have to do is after that below an exercise is given to you wherein you have to use any 6 words from A column. A column में कितने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 words are given. Out of that any 6 words you will be using, and you will be describing about वन ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन. कोई भी एक फेवरेट स्पोर्ट्समैन के बारे में डिस्क्राइब करना है अपार्ट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, तो वो आपको नहीं करना है. उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्समैन, भले कोई भी स्पोर्ट्स में वो प्रोमिनेंट हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि क्रिकेटर ही होना चाहिए, ठीक है. सो कोई भी एक स्पोर्ट्समैन को ले लो, उनके बारे में डिस्क्राइब करो, सेंटेंसेस बनाओ, ये 6 वर्ड्स उसमें आने चाहिए, 8 में से कोई भी 6 वर्ड्स, ओके. अंडरस्टूड? या
Activity 9. Now in activity 9 it is given an imaginary interview of MS Dhoni after winning the World Cup. एक imaginary interview frame out किया है. Interview is asking, congratulations on your historic win. How do you feel? So interviewer पूछ रहे हैं उनको. So Dhoni is saying, it's a wonderful feeling. It was a team spirit which worked so well. Yeah. So interviewer again ask, you really kept your cool even though it was a close finish. मतलब तुम अभी भी कितने humble हो, इतना तुमने अचीव कर लिया फिर भी. तो धोनी says, well, गंभीर was a great support at the other end. It was totally the team's effort. उन्होंने बोला yes, totally team effort की वजह से हमने win up किया. Interviewer says, congratulations once again. So he says thank you. Now it's a small interview talk they have given. आपको क्या करना है, आपको आपके फेवरेट एक पर्सन होगा, आपको इमेजिन करना है कि आप उनके साथ इंटरव्यू ले रहे हो. सो यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, दे आर आंसरिंग यू. तो आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं उसको पहले फ्रेम आउट करो. ठीक है, प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप पूछोगे उनको. वो एक एक्टिविटी है. ठीक है, एक्टिविटी 9 में हमको थोड़े बताए हैं. वैसे आपको कोई भी 6 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जो आप आपके कोई फेवरेट पर्सनालिटी को मिलोगे तो पूछोगे. ठीक है, कोई एक इवेंट इमेजिन करो जो उन्होंने अचीव की है, या कोई फिल्म सक्सेस है, या कोई स्टोरी बुक उनकी प्रोमिनेंट हुई है, या कुछ भी ऐसा किसी ने अचीव किया. कोई फैशन मॉडल हो आफ्टर विनिंग द फेमिना अवार्ड एंड ऑल. ओके, तो आप सपोज उनको इंटरव्यू कर रहे हो, आपकी जो भी फेवरेट पर्सन है. ठीक है, और उनको क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछोगे, वो क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाना है. एटलीस्ट 6, मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस यू कैन प्रिपेयर. ओके, you have prepared the list of 6 questions or 10 questions, okay, which you will be asking your favorite person. It could be a film actor or a sportsman, whatever it is. Okay, कोई भी हो सकता है, फेमिना मॉडल, whoever. अब आपको ये क्वेश्चंस उनको तो डायरेक्टली आप नहीं पूछोगे, राइट. तो आप क्या करना, आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, ठीक है, या फिर आपके ब्रदर सिस्टर हो, सिबलिंग हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स, किसी को भी बोलो हम एक रोल प्ले करते हैं. रोल प्ले में आप इंटरव्यूअर बन जाना और उनको वो पर्सनालिटी बना देना, या फिर आप वो पर्सन बन जाओ और उनको इंटरव्यूअर बना दो, और आप लोग आपस में ये क्वेश्चंस पूछो, और जो रिस्पॉन्स आता है वो आपको डायलॉग फॉर्म में आपकी नोटबुक में लिखना है. क्लियर, अंडरस्टूड. आपने क्वेश्चंस बना दिए, फिर वो क्वेश्चंस आप डायरेक्टली तो उनको नहीं पूछ सकते हो, तो आप एक रोल प्ले करोगे. ठीक है, सपोज आई एंड यू, ओके, वी बोथ आर डूइंग दैट इंटरव्यू. तो आपने अभी मुझे वो क्वेश्चंस दे दिए कि मैडम आप मुझे एक क्वेश्चन पूछना, मैं वो कैरेक्टर बनता हूँ. फॉर एग्जांपल कोई राइटर है या कोई स्पोर्ट्समैन है. ठीक है, तो आप वो कैरेक्टर में आ जाओ, या फिर मुझे I will be in that character and you will ask me the question, I will answer what I have to answer. ठीक है, फिर आप वो आंसर्स को लिखो और उसको डायलॉग फॉर्म में, मतलब आपने पूछा मैंने क्या कहा, आपने पूछा मैंने क्या कहा, इस फॉर्म में आप लोग आपकी नोटबुक में लिखोगे. डायलॉग राइटिंग. Understood? That is what you have to do in activity 9. Activity 10 is cancelled. That is not to do. You do till activity 9. I'll be sharing you the hard words and exercises on Tuesday along with essays wherein you can solve it and add it in your notebook. Okay? Take care. Have a nice day.